अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का केटीआर पर इल्ज़ाम, तेलंगाना में तरक्याती मंसूबों को रोकने की साजिश। राहुल गांधी का मुतालबा, समाजी इंसाफ के लिए तेलंगाना में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी ज़रूरी। कांग्रेस का मुतालबा, अडानी ग्रुप की करप्शन की तहकीकात के लिए जेपीसी तश्कील दी जाए। रैली में कोहरे की वजह से 12 गाड़ियों की जबरदस्त तसादुम, 25 अफराद जख्मी। जसप्रीत बुमराह को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का आर्जी कप्तान मुकर्रर किया गया। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वेमुलावाडा में प्रजा पालाना वजूद सवालू तकरीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। केटी रामाराव पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केटीआर तेलंगाना में तरक्याती प्रोजेक्ट्स को रोकने की साजिश की है और उनकी ऐसी हरकतें उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। मज़ीद बारह रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में ज़मीन के हुसूल के दौरान होने वाले हमलों के लिए बीआरएस रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहराया और इल्ज़ाम लगाया कि अहलकारों पर हमले कराने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया गया था। కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టిండు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 7 లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో అప్పుల ఊబిలో ముంచిండు। 7 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తెచ్చిన చంద్రశేఖర్ రావు 10 సంవత్సరాలలో 20 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన చంద్రశేఖర్ రావు 100 కోట్లతోని రాజన్న దేవాలయాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయిందా? ప్యాకేజ్ నెంబర్ 9 సిరిసిల్లలో ఎందుకు పడావు పడ్డది? కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు పూర్తి కాలేదో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। 10 ఏళ్లలో నువ్వు 1,00,000 రూపాయలని 4 విడతలని మిత్తి కడతా అని తడిసి మోపెడై రైతులు దేశంలోనే ఆత్మహత్యలలో 2వ స్థానం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన సంగతి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మర్చిపోయినట్టున్నాడు। మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో ఉంటే ఈ 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం రైతుల ఆత్మహత్యలలో 2వ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది। నువ్వు రైతు రుణమాఫీ చేస్తా అని మొదటి 5 సంవత్సరాలు 1,00,000 రూపాయలు చేస్తా అని 4 విడతలని 5 ఏళ్ళని నువ్వు ఆ 1,00,000 చేసే లోపల ఇంకొక 1,00,000 మిత్తి అయింది। అసలు మిత్తి తడిసి మోపెడైంది। రెండవసారి మళ్ళీ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తా అని 5 ఏళ్ళైనా 1,00,000 రూపాయలు పూర్తి చేయలే। ఆ 5 ఏళ్ళలో ఆయన ఇచ్చింది 11,000 కోట్ల రూపాయలు। ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారిని అసెంబ్లీకి రమ్మనుండ్రి, లెక్కలన్నీ తీసి నేను చదివి। वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने बुध के रोज़ कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना को एक अहम सियाती मकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस कर रहे हैं और मुलुगु ज़िले को एक बड़ा सियाती मरकज़ बनाने के लिए संजीदा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया है कि लखनावरम झील में वाक़ तीसरा जजीरा TSDC और फ्रिक आर्ट्स एडवेंचर कंपनी के इश्तराक से 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वज़ीर जोपल्ली और दानासरी अनुसुईया सीताक्का ने इस जजीरे का इफ्तिताह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट की नई बुलंदियों को छू रहा है और रियासत को सियाती मकाम के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। స్థాయిలో అంతకంటే మించి చేసేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం। త్వరలోనే దాని ల్యాండ్ భూసేకరణ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు। ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆ దిశ కూడా అడుగులు పడతా ఉన్నాయి। కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక అద్భుతమైనటువంటి పర్యాటక కేంద్రంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంది। ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ ఏ వనరులు ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను రాష్ట్ర ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేసేది కూడా రూల్స్ విజ్ఞప్తి చేసేది కూడా ప్రపంచంలో లేని మన దగ్గర ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఉన్నాయని మన దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ మన దగ్గర ఉన్నాయి ప్రపంచంలో లేవు। అంటే గొప్ప కట్టడాలు కావచ్చు, చారిత్రక కట్టడాలు కావచ్చు, గొప్ప దేవాలయాలు కావచ్చు, అట్లాగే పురాతనటువంటి అంటే యాన్షియంట్ నిర్మాణాలు, గొప్ప గొప్ప నిర్మాణాలు, ఆర్కియాలజికల్ కట్టడాలు కావచ్చు, చాలా ఉన్నాయి। ములుగు జిల్లా వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1 పర్యాటక ప్రాంతంగా వర్ధిల్లుతా ఉంది। ఇటు లక్నవరం కానీ అటు రామప్ప మరి టెంపుల్ వరల్డ్ హెరిటేజ్గా ఉండడం కానీ రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఫారెస్ట్ ఉండేటువంటి ఏరియా కూడా మన ములుగు
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध के रोज कहा है कि समाजी इंसाफ के लिए जात पात की मर्दमशुमारी जरूरी है और तेलंगाना हुकूमत ने इसका 70% काम मुकम्मल कर लिया है। गांधी ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने तेलंगाना में जात पर मबनी मर्दमशुमारी का 70% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया है और बहुत जल्द हुकूमत के पास रियासत का तफसीली डेटा होगा जिसे हम पॉलिसियाँ बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जात की मर्दमशुमारी मजमूई तरक्की के लिए अहम इक़दाम में से एक है और यह आइंदा चंद दहाइयों की मनसूबाबंदी में मददगार साबित होगा। गांधी ने मुल्क भर में जामे ज़ात की मर्दमशुमारी का मुतालबा किया और कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इस राह में रहनुमाई फराहम की है और कौमी सतह पर भी एक जामे मर्दमशुमारी कराएंगे। अमेरिका में SEC की जानिब से गौतम अडानी और उनके साथियों के खिलाफ दायर की गई फर्द जुर्म ने कांग्रेस के इस मुतालबे को मजीद तक़वियत दी है कि अडानी ग्रुप की करप्शन की तहक़ीक़ात के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC तश्कील दी जाए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासलात जयराम रमेश ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अडानी और उनके साथियों के खिलाफ अमेरिका में दायर की गई फर्द जुर्म हिंदुस्तानी हुकूमत के बदअनवानियों और सिक्योरिटी कवानीन के खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं अडानी और अडानी के साथियों को लेकर, और इसके बारे में अमेरिका की अदालत में गौतम अडानी और उनके साथियों के खिलाफ आयद इल्ज़ामात के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के हवाले से ताज़ा तरीन इल्ज़ामात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने अडानी के फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से अडानी ग्रुप के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के क़याम के मुतालबे को भी दोहराया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम अडानी के खिलाफ अमरीकी अदालत में आयद फर्द जुर्म पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये वाज़ेह हो चुका है कि अडानी ने अमरीकी और हिंदुस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि अडानी अब तक हिंदुस्तान में आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, जबकि माजी में कई वज़राए आला और आम अफराद को मामूली मामलात में गिरफ्तार किया जा चुका है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले समेत कई दीगर माली बेज़ाब्तगियाँ की हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं। दरअसल इंडिया में मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब हाँ, अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज LOP इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। JPC की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी, यही पूछना चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है? इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते, अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और मैं नहीं कह रहा हूं जो सामने बात आ रही है। नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत को आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियों के फैसले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा है कि बेहतर होगा कि बीजेपी अपनी पूरी हुकूमत ही आउटसोर्सिंग कर दे ताकि कमीशन का पूरा हिसाब एक ही जगह तय हो जाए। अखिलेश यादव ने इस फैसले को पसमानदा दलित और अक़लियती तबकात के खिलाफ साजिश करार देते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत इस फैसले को फौरी वापस ले और आईनी रिजर्वेशन के हक को नुकसान न पहुँचाए। यूपी की बरेली में नैनीताल हाईवे पर जुमरात की सुबह कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर के नतीजे में 25 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा जादवपुर क्रॉसिंग के करीब तकरीबन 7 बजे सुबह पेश आया, जहां कोहरे के बाद SRMS की एम्बुलेंस DCM से टकरा गई, जिसके बाद दीगर गाड़ियां भी एक दूसरे से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई करते हुए जाम खुलवाया और ट्रैफिक को बहाल किया।
गाड़ी आगे क्या? अरे देवी लौट रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की शिद्दत के बढ़ते खतरे के दरमियान अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जैसे इटली, स्पेन और हंगरी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने सफारत खाने को बंद कर दिया है। अमेरिका ने इस फैसले की वजाहत करते हुए कहा है कि रूस की तरफ से कीव में शदीद हमले का इम्कान है, इसलिए हिफाजती वजूहात की बिना पर सफारत खाना बंद किया गया है। ताहम यूक्रेन ने इस फैसले पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि वो गुज़िश्ता 1000 दिनों से हर रोज़ हमलों का सामना कर रहा है और एक फर्जी खबर के बुनियाद पर सफारत खाने को बंद करना गैर मुनासिब है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा को टीम इंडिया का मुस्तकिल कप्तान मुकर्रर किया गया है और जसप्रीत बुमराह को उनका नायब कप्तान बनाया गया है। ताहम सीरीज़ के पहले मैच में रोहित शर्मा दस्तयाब नहीं होंगे, जिसके नतीजे में बुमराह टीम की क़यादत करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने कहा है कि उनकी क़यादत का अंदाज़ रोहित और कोहली से मुख्तलिफ है। उन्होंने इस जिम्मेदारी को एक ओहदे के बजाय अहम फरीज़ा समझा है। बुमराह ने तेज़ गेंदबाजों की कप्तान बनाने की हिमायत करते हुए पैट कमिंस की मिसाल दी और कहा है कि तेज़ गेंदबाजों में जहानत ज़्यादा होती है और माजी में कपिल देव जैसे अजीम कप्तान भी यही किरदार अदा कर चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का केटीआर पर इल्ज़ाम, तेलंगाना में तरक्याती मंसूबों को रोकने की साजिश। राहुल गांधी का मुतालबा, समाजी इंसाफ के लिए तेलंगाना में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी ज़रूरी। कांग्रेस का मुतालबा, अडानी ग्रुप की करप्शन की तहकीकात के लिए जेपीसी तश्कील दी जाए। रैली में कोहरे की वजह से 12 गाड़ियों की जबरदस्त तसादुम, 25 अफराद जख्मी। जसप्रीत बुमराह को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का आर्जी कप्तान मुकर्रर किया गया। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में क़यादत करेंगे। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।